Welcome to the another episode of Indian Warrior Talk Show. We have a very special guest today, Mr. Pallav Datta, who is a ex Indian Naval Academy cadet and who has been a seller also, and now working as a founder of the Cult SSB and also working in a corporate sector. So today we are going to learn about his life and उनकी जो एक inspirational journey रही है एक seller से Indian Naval Academy तक का, because it's not very easy journey. We are going to know about what did it take for him to become from a sailor to the Indian Naval Academy cadet, and also will know about the entries in armed forces, as he has been very seasoned a mentor for hundreds of the students and have given more than 100 recommendations in the past few years. So welcome Pallav to the Indian Warrior Talk Show. Thank you so much, sir, on behalf of whole team as well as everyone. And I hope the more as much as I can handle the queries, questions, I would be very much fortunate enough to help the single most candidate, whosoever is watching this, as well as the audience out here in your channel. Thank you, sir. Thank you. So it's our honor to have you here because जो एक जर्नी रही है एक सेलर से इंडियन नेवल एकेडमी तक की. So I know it's not very easy because me being from a Sainik school, so I know what did it take for you to join the Indian Naval Academy, right? So let's begin from the childhood. What was the background and how did it all started? Sir. Yes, sir. Background is very important here because I belong from a naval background, a humble navy background. बचपन से I have seen life of in armed forces. Like my father was in navy, recently got retired. So it was like I was seeing my father daily, day in day out, going for sailings and working day in day out. तो बचपन से था कि हाँ ऐसा कुछ सर्विस है, I should opt for it. And then after all those years, even my elder brother is now in navy. So उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि फिर मैंने देखा कि लेगेसी कैसे बढ़ती है. सो इट स्टार्टेड, आई स्टडीड माई इनिशियल ऑफ माई स्कूलिंग फ्रॉम नेवी चिल्ड्रन स्कूल विशाखापट्टनम. Then I went to Sri Chaitanya Vidya Niketan, that is also in Visakhapatnam. Then I did engineering from Visakhapatnam only. Though I cleared JEE mains, got NIT, but didn't join because of some reasons. मैं अपने कुछ मेडिकल इश्यूज को क्लियर करवा था और मेरे जो भी चीज़ें थे मेरे सर्जरीज वगैरह, तो दैट इज़ व्हाट आई डिड. एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मैंने अपना इंडिया टाइम्स से स्टार्ट किया, गिविंग माई इंडिया रिटर्न. क्लियर इट इन माई सेकेंड अटेम्प्ट, दो couldn't क्लियर इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, जो आपका 12th के जस्ट आप एंटर करते हो तभी होता है इन द अप्रैल. आई कैन रिमेंबर द ईयर 2017. सो couldn't क्लियर. देन आई इंट्रोस्पेक्टेड, देन आई लर्न कि इतने सारे गलतियाँ हो सकती है. सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स दैट जर्नी बिगिंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. एंड वहाँ से लेकर यहाँ तक की सफ़र इज, आई वुड से, रोलर कोस्टर भी थी एंड मच मोर मेमोराइजिंग, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला. राइट कोई एक ऑफिसर है, कोई किसी ने एग्जाम क्लियर किया हुआ है या फिर कोई कहीं पे भी काम कर रहा है, so it has not been an easy journey for anyone, right? So how much attempts did it take for you to reach to Indian Naval Academy? You can tell about your sailor exams also, like which you give. So Yes, sir. please tell us something about all the attempts you have given and in which attempt did you Yes. reach the naval? Definitely, sir. I would like to start from the basics. So I gave my NDA in 2017, cleared it, couldn't clear the SSB in my very first attempt. So उसके बाद फैमिली से भी थोड़ा था, and then people were also like कि you should try for other things as well. And जैसा होता है when you are born and brought up in a family जहाँ पे आप देखते हो कि people are doing good after their 12th as well joining. तो I also applied for तब अग्निवीर नहीं होता था. So that time this apprentice artificer and senior secondary recruit was there, SSR, जो आप लोग को भी पता है काफी ऑडियंस को. So these two were there, and again I gave those exams. In my first SSR AA, I couldn't clear the medical thing, though I cleared my everything, PFT, written, everything. So in my second SSR AA, I cleared everything, and I was again a good all India ranker for AA. Then I joined INS Chilka as a apprentice artificer. Did some training for 2 months. एंड इसके साथ साथ अगेन गोइंग लिटिल बैक, मैंने इसके साथ साथ और भी अपने डायरेक्ट एंट्रीज भी दे रहा था, बट होता है कि लक एंड अदर फैक्टर्स, प्रिपरेशन उतनी हो नहीं पा रही थी. आई वॉज ऑल्सो डूइंग माई इंजीनियरिंग, आई वॉज ऑल्सो इन NCC, तो बहुत सब एक साथ मिक्स एंड मैच हॉच पॉच हो गया था. तो आई वॉज लाइक कि जस्ट दैट जो भी है मिल रहा है चले जाते हैं. एंड देन सो दैट टाइम वहाँ तक बिफोर आई जॉइन द अकेडमी ऑफ एज अ सेलर, तब तक मेरे ऑलरेडी 8 SSBs हो चुके थे, एंड विच इंक्लूड्स 3 कॉन्फ्रेंस आउट्स and 5 screen outs. So that was a streaks of screen outs, and I still recollect those days. मैं पूरे एक साल तक एक बार भी screen नहीं हो पाया था. So those were good old days, I would say. And then finally when I landed up at INS Chilka, I realized कि काफ़ी कुछ है जो मुझे और सीखना है, मुझे समझना है. और then I did training there,
डिड एवरीथिंग जो भी यहाँ सेलर्स सुन भी रहे होंगे इस चीज़ को, दे नो व्हाट इज द ट्रेनिंग एट चिल्का. एंड इवन आर्मी एंड एयरफोर्स का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. So I was there with thousands of cadets there, and I was in the Eklavya division of INS Chilka. Did training for 2 months, and then I realized कि मुझे है ना बाहर आना चाहिए, क्योंकि I was at the middle of my engineering. I was in my 6th semester. तो I realized कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मेरी पूरी 3 साल of my engineering will go away. And then I also realized कि NCC भी खत्म होने वाली है. मुझे एक ऑफिसर बनना था बचपन से ही है. That was that कि हाँ कंधों में stripes and all those things. फिर आई रियलाइज कि नहीं छोड़ना चाहिए. और दो आप है ना पीपल से दैट गवर्नमेंट जॉब था क्यों छोड़ा एंड ऑल दोस थिंग्स, बहुत सारे और भी चीज़ें थी फैक्टर्स विच आई कंसिडर्ड कि अगर छोड़ने से क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है. देन स्लोली मैंने फिर विड्रॉल फॉर्म भरा एंड ऑल दोस थिंग्स हैपेंड. बहुत कुछ हुआ है ना, लॉट ऑफ प्रेशर हैपेंड लाइक फ्रॉम फैमिली साइड है ना, फ्रेंड साइड, एकेडमी साइड. कोई छोड़ना नहीं चाह रहा बिकॉज पीपल से एंट्री डिफिकल्ट है, बट आई वुड से एग्जिट डिफिकल्ट है फ्रॉम एनी सर्विसेज, पर्टिकुलरली फ्रॉम government service. And then I came out from that place, and then that was in the year 2021. I still remember those days of February. ठंडा का टाइम था और I came up, my family was like कि आप देख ले जो करना है, and even friends were like कि यार इसने तो छोड़ के आ रहा है क्या कर रहा है. So I kept to myself कि कुछ भी होगा अच्छा ही होगा. तो I gave my AFCAT thereafter. That was my first AFCAT. I was lucky enough to clear my exam in my very first attempt. I was in my engineering final year that time. Or I cleared it. Luckily, I also got call letter for direct entries for SSC, Navy, Army, and other things. So gave my AFCAT. Couldn't got recommended again. वो streak start होने गया, but I got screened in. Again, I realized one thing कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको लाइफ में सिखाती है. जैसे मैंने NCC किया था, NGO में भी काम किया था, NSS में भी किया था. So all those things came up in the real ground zero while giving SSB, AFSB. Couldn't clear AFSB और उसके एक हफ्ते के तुरंत बाद I got my SSB for Navy. That was scheduled in Visakhapatnam, and I was in that zone कि यार अब तो हो ही नहीं रहा, ठीक है देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा. तो I gave, and that was my first recommendation which happened in my I would say 11th attempt, 10th attempt, and I made it, and I realized कि ठीक है यार किया जा सकता है. But I couldn't join academy that time due to some medical issues. It was related to my eyes, vision का कुछ issue था because it was of technical entry. And then I again gave SSB, couldn't got recommended. फिर उसके बाद again I got recommended. That time in my second recommendation I joined Naval Academy. That was for NOC 37 course. काफी लोग को पता होगा Naval Orientation course होता है. Parallel to I am not able to recollect that INAC course जो 10+2 और NDA वाले साथ में जाते हैं. And then I joined और फिर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी. But my मेरा एक ऐसा टिपिकल इशू था कि जो पॉलिसी में नहीं लिखा था नेवी की मेडिकल पॉलिसी में. So फिर उसी पे बहुत ग्रे एरिया बना and still the committee report is pending and lot of things are happening. So far I've given around 15 SSBs, which includes 5 screen outs, 10 screened in, 3 back-to-back recommendation. Even after coming out from academy, I also got recommended again. But since मेरे पुराने cases पुराने medical वो सब चल रहे थे, तो they are like ठीक है वो सब क्लियर हो जाएगा तो you will get ante-date seniority. मतलब basically जिस दिन से आपने पहले ज्वाइन किया है उस दिन से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है. आप अभी जो भी बाहर कर रहे हो करो, जब आपको बुलावा आएगा उस दिन से ही काउंट होगा आपका. तो then this was like to summarize 15 SSBs and this thing happened. And lot of journey ups and downs, screen out conference और काफी लोग को पता ही होगा इसके बारे में. So this was that, sir. Very inspirational journey I would say, because इसमें जो आपकी स्टोरी है उसमें तो मुझे एक चीज दिखता है जो है डिटर्मिनेशन, और जो दूसरी चीज है वो है कंसिस्टेंसी. यू आर ऑलवेज कंसिस्टेंट एंड स्ट्राइविंग फॉर द गुड, है ना. एक जो लाइफ में बचपन से बनना था, यू ऑलवेज स्ट्राइव हार्ड फॉर दैट. इवन आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड एज अ सेलर, you thought कि नहीं, this is not something where I always wanted to be. You wanted to be officer और उसके लिए you tried, right? So this is, and I think that everyone should take inspiration from your journey, क्योंकि 15 attempts is not a very cakewalk for everyone, right? तो लोग तो 4-5 attempt में ही exhaust हो जाते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है. But it shows your determination कि नहीं मुझे जहाँ जाना था, and you finally reached there. So नेवल एकेडमी के बाद की जो जर्नी रही है, I know it's not easy, and but somewhere in between you founded कल्ट एसएसबी, जहाँ पे आप लोग ट्रेन कर रहे हो एस्पिरेंट्स को. बिकॉज एक जो जर्नी है आपकी ऑलरेडी इंडियन नेवल एकेडमी तक पहुंचने की, सो आई डोंट थिंक any aspirant can have a better person than you who will guide to join that academy, right? So how was the journey of the cult SSB? कैसे शुरुआत हुई और अभी तक कहाँ जर्नी पहुंची है?
Yes, sir. Yes, sir. So it all happened after my first recommendation. I got recommended in December 2021. So I was in my final year of engineering. I thought कि अब तो यार मैंने काफ़ी अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, काफ़ी लोग को काफ़ी डाउट्स आती है, दिक्कत आती है, मुझे भी आती थी इन माई प्रिपरेशन व्हेन आई वाज इन माई फाइनल ईयर। स्टोरीज रिव्यू नहीं होते थे मेरे टाइम पे, देन बहुत लोग के बहुत सारे डाउट्स रहते थे। पीपल यूज टू पे लॉट ऑफ मनी आउटसाइड फॉर ऑफलाइन एंड अदर थिंग्स। आई रियलाइज वन थिंग कि ठीक है, इफ यू नो समथिंग लेट्स कॉन्ट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी। जो आपने लिया है, इतनी चीज़ें सीखा है। So I remember that day that I was in the corridor of my college campus and one candidate approached. He said, "Please review my story," and I reviewed it. And then he told, "Sir, please start Telegram channel. It will help you a lot." And then I thought कि हाँ यार सोचा जा सकता है इस पे। तो I was that time मैं सोचा था नाम क्या दूँ। तो I referred my mentor एक है हमारे एक सीनियर है ऑफिसर। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला यू स्टार्ट दिस थिंग, ये नाम बहुत अच्छा चल रहा है। तब कल्ट फिट बहुत नया नया आया था, है ना, कि कैसे Correct. कल्ट से फिट आता है, मतलब यूनिक वे टू बिकम फिट। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, नाम में क्या रखा है, हम फिर भी थोड़ा सा लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो इट ऑल हैपेंड इन February 2022 when we officially started Telegram group of Cult SSB. We just started as 2-3 member in a group, and slowly now it has expanded to more than thousands of candidates all across the country. We started with one candidate कि चलो यार उसी को हेल्प करेंगे हम अच्छे से, and luckily we got more than thousand of candidates who are enrolled students, and more than 122 candidates have got recommended so far because I started after my first recommendation, then I also got recommended, joined academy. मतलब we also are working as a team. हमारे साथ काफ़ी सारे ex OTA वाले हैं, ex NDA हैं, और मल्टीपल recommended हैं, जैसे जिन लोग academy नहीं भी जा पाए वो लोग भी हमारे साथ काम करते हैं। तो ऐसे करते करते वी ऑल इवॉल्व क्लोजली, है ना, कंटिन्यूसली। बहुत सारे ऑफिसर्स भी आए हमारे साथ, सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स। तो उन्होंने भी काफ़ी सारे सेशंस लेते हैं और क्लासेस होती है। एंड मतलब हमने एक ब्रिज बना दिया कि जो पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप होती है, लर्निंग होती है, कि जो होता है ना 1-to-1 फीडबैक, काफ़ी जगह लोग सोचते हैं कि हमें ध्यान भी दिया जाएगा कि नहीं। तो हमने सोचा यही चीज़ को हम इरेडिकेट कर देते हैं। सो दैट वाज आवर ओनली मोटो। एंड अगेन कमिंग टू द अफोर्डेबिलिटी, काफ़ी जगह इफ यू पे 25-40 एंड वॉट नॉट, तो व्हाट हैपेंस इज पीपल फील दैट कि हाँ हमारा 21 दिन खत्म हो गया, 15 दिन खत्म हो गया, तो बस। हमने सोचा कि चलो इसको पूरा ही हटा देते हैं। हमने बोला जब तक आप रिकमेंड हो जाए तब तक आप आओ हमारे पास, चीज़ें सीखो समझो। एंड पीपल आर मेकिंग इट। एंड अभी भी जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, जनवरी कोर्स में इतने सारे लोग जाने वाले हैं। तो अगेन दैट फील्स दैट कि आप जो वो एक थॉट से स्टार्ट किए थे कॉरिडोर में चलते चलते कि एक कैंडिडेट आया, एंड स्लोली इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ हार्डली 2 years इट हैज ग्रोन बिकॉज ऑल बेस्ट विशेस। सर का भी बहुत इसमें था, हिमांशु सर का। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें दैट ऑलवेज पुशेस अस, एंड कल्ट ने अभी और भी ग्रो करना है। इट हैज़ नाउ 45+ कमीशन ऑफिसर्स, एंड आई वुड से ये अभी भी कम है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 100,000 भी बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द Correct. जर्नी ऑफ कल्ट, एंड कल्ट हैज़ गॉट एन एक्रोनिम ऑल्सो। जैसे लोग सोचते हैं कल्ट तो एक जरिया है, जैसे होता है ना कल्ट एक सोसाइटी है, ग्रुप है, ऐसा नहीं है। कल्ट हैज़ गॉट एन एक्रोनिम नोन एज सेंटर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग द टेक्निक्स टू क्रैक SSB। तो अपने में इसका एक मीनिंग भी है, अपने में इसका खुद का मीनिंग भी है। सो दैट इज Correct. व्हाट वी वर्कड ऑन। So there is a saying ना, journey of 1,000 miles starts with the first step. So वो फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया था और वो जर्नी अभी चल रही है। एंड अभी 1,000 माइल क्या, बहुत माइल कवर करना है। एंड और विशेज आर ऑलवेज विद यू एंड योर टीम। एंड हम लोग तो हैं, तो वी एज अ टीम, एज अ होल टीम, वी हैव टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, है ना, टू लिव, सो दैट एवरीवन फील्स सेफ और उसको लगता है कि हाँ देयर इज समवन हु इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग, है ना। सो कल्ट SSB इज वन ऑफ देम कि दे ऑलवेज होल्ड द हैंड ऑफ देयर एस्पिरेंट्स, जो भी लोग हैं। एंड कल्ट SSB's journey, talk on some of the entries in the armed forces, right? बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ एंट्रीज तो पता होती हैं, लेकिन सारी की सारी एंट्रीज उनको नहीं पता होती, तो दे मिस आउट ऑन सम ऑफ द एंट्रीज, राइट? सो सपोज आफ्टर द 10+2 द मोस्ट कॉमन इज NDA, है ना, टू बिकम ऑफिसर। आफ्टर ग्रेजुएशन CDS और FCAT तो बहुत कॉमन है, लोग जानते हैं उसके बारे में। बट Yes, sir. उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी एंट्रीज हैं जो लोगों को नहीं पता। So let's Yes. talk about the famous one also, और कुछ जो आप जानते हो, टेक्निकल हो गया, आर्मी का टेक्निकल, नेवी टेक्निकल, so you can tell about all those one by one. Like let's start from 10+2. We basically our focus will be on the officers entry, and after that you can also include the sailors and sipahi wala, agniveer, whatever. Yes, sir. Definitely, sir. So starting from 10+2 entries, basically, as soon as you're in your 12th standard, so you are eligible for applying for NDA. Because NDA doesn't demand your JEE score or anything. Initial days में क्या होता था, before 2018, 2019 में
your 12th score was also very important because I remember my direct entry came with my 12th percentage. And उससे पहले ऐसे ही होता था, all the seniors who are now senior lieutenant commanders, उनके टाइम में भी ऐसी चीजें चलती थी. अब जेई जब से आया है, परसेंटाइल सिस्टम जब से आया, तो इट हैज गॉट परसेंटाइल बेसिस. सो एनडीए इज अ वेरी गुड ऑप्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपको यू हैव टू गिव अ रिटन एग्जाम, यू हैव टू क्वालिफाई, देन यू हैव टू गिव एसएसबी एंड द फर्दर प्रोसीजर. देन सेकंड एंट्री फॉर नेवी इज 10+2 बीटेक एंट्री. अब इसमें होता क्या है कि यू हैव टू गिव योर जेई मेंस. इट्स नॉट मैंडेटरी टू क्लियर दैट एग्जाम. आप उसमें एक अच्छा खासा परसेंटाइल लेकर आओ, गुड रैंकिंग, देयर इज द सीआरएल होता है एक, तो उसके हिसाब से यू गेट टू नो कि आप मतलब आप जब फॉर्म भरते हो देयर बाय यू विल बी गेट शॉर्ट लिस्टेड. तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अभी तो इट हैज ओपन ऑल्सो फॉर फीमेल्स. देयर आर 5 to 6 वैकेंसीज फॉर फीमेल्स एज वेल. पहले नहीं होता था इस एंट्री में. एंड तो ये है नेवी का डायरेक्ट एंट्री. देन कमिंग टू आर्मी टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम, सिमिलर टू दैट, सिमिलर टू नेवी ओनली. जेई का अप्लाई करना होता है एंड जेई के थ्रू आपको लाइक यू हैव टू गिव एग्जाम एंड देन यू हैव टू फिल द फॉर्म based on their shortlisting. Then they will be calling you for SSB. Again the same medicals and all those things happen. And again female के लिए अभी तक TES का नहीं खुला है as of now. It might open in the near future. So these three are prominent entry for 10+2. For example now those who are in the service, है ना, सर्विस वालों के लिए क्या रहता है, जैसे मान लो those who are in army, navy, तो in navy they have got an entry called commission वर्दी, CW entry कहते हैं उसे, जो जनरली सेलर से ऑफिसर बनने के लिए डायरेक्टली फ्रॉम नेवी. सो इन दैट एंट्री व्हाट हैपेंस इज यू हैव टू गिव अ रिटन एग्जाम. आप ही के यूनिट में होता है, या आपको अपने डिविजनल ऑफिसर से या फिर जो भी आपके यूनिट में आपको जो भी ऑर्डर्स आते हैं उसके थ्रू यू हैव टू अप्लाई एंड यू हैव टू क्लियर इट. देन डिपेंड्स ऑन यूनिट, व्हेन यूनिट यू हैव टू गिव अ लिटिल स्क्रीनिंग टेस्ट जैसा कुछ होता है. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली गो टू एसएसबी. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूनिट एंड योर कमांड या जैसा भी है. तो वो वापस क्या करवाएगा, आफ्टर यू क्लियर योर एसएसबी गेट रिकमेंडेड, यू गेट अ 4 years ट्रेनिंग सिमिलर टू 10+2 बीटेक नेवी. मतलब बेसिकली पैरेलल कोर्स में आप साथ में चल जाते हैं. देन अगेन सिमिलर इज एसीसी ऑफ आर्मी, जिसमें आप आर्मी कैडेट कॉलेज में आप जाते हो और अगेन यू हैव टू क्लियर दैट एग्जाम, गिव एसएसबी एंड अगेन द सेम प्रोसीजर. एंड वहाँ पे भी सेम होता है, 3 साल एसीसी में और 1 साल आईएमए में आप रहते हो. और अगेन यू विल बी डूइंग योर ग्रेजुएशन पैरेलली विथ योर ट्रेनिंग ऑफ द आर्मी एज वेल एज नेवी. तो ये है कुछ 5 एंट्रीज जो 10+2 इक्विवेलेंट वाले भर सकते हैं. कमिंग टू द ग्रेजुएशन पार्ट, ग्रेजुएशन में सबसे प्रोमिनेंट एंट्री जैसे सर ने बताया सीडीएस और एफकेट. सीडीएस इज ऑल फॉर ऑल द 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. बट हियर इन सीडीएस यू ऑप्ट फॉर एकेडमीज, जैसे आईएमए हो गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, एंड देन फाइनली इज योर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी. सो ओटीए इज फॉर एसएससी एंड फॉर ओटीए मतलब फीमेल्स कैन ओनली अप्लाई फॉर ओटीए एंड फॉर मेल दे कैन अप्लाई फॉर ऑल द 4 सर्विस, फॉर ऑल द 4 एकेडमीज. तो ये है मोटा मोटा. देन यू हैव टू क्लियर दैट यूपीएससी सीडीएस एग्जाम, go for the SSB, and the similar merit list and all those things will come up. Coming to the FCAT, this is again an entry which is prominent for those जिनको मान लो कि CDS नहीं हो रहा है या फिर जिनका हो भी रहा है, they want to है ना ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस इन एयरफोर्स. जैसे फॉर सीडीएस AFA उसमें यू गेट पायलट, ठीक है, प्रोमिनेंटली पायलट. तो काफी लोग दे आर नॉट एलिजिबल फॉर पायलट, या जिनका लगता है नहीं मुझे एयरफोर्स जाना है, या बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन. सो FCAT इज अ गुड एंट्री. अगेन यू हैव टू गिव अ एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है, क्लियर करो, अगेन गिव AFSB एंड देन द सिमिलर प्रोसीजर. अगेन मेरिट लिस्ट विल कम. इन दिस यू गेट ब्रांच फॉर ऑल टाइप ऑफ ब्रांच, एडमिन, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, आपका एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड बहुत सारे ब्रांचेस आपको मिलेंगे. तो ये है FCAT CDS जो प्रोमिनेंट लोग बहुत सुनते हैं. रिटर्न की भी तैयारी होती है. इवन इन कल्ट ऑल्सो वी हैव गॉट रिटर्न प्रोग्राम दीस डेज. इसके अलावा वी हैव गॉट डायरेक्ट एंट्रीज. ये डायरेक्ट एंट्रीज अलग से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि काफी सारे लोग इंजीनियर्स होंगे, काफी सारे लोग ने एनसीसी कर रखा होगा, काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मतलब कि एनसीसी भी किया है, बीटेक भी के लिए भी किया. तो कौन सा किस में आप एलिजिबल हो, तो हम अलग से बताते हैं. सबसे पहले नेवी में आ जाते हैं. नेवी के पास ग्रेजुएशन के बाद नेवी के सिर्फ 2 ही एंट्रीज रहती है, एक CDS INA और दूसरी है SSC नेवी. अब ये SSC नेवी में भी 2 टाइप ऑफ SSC नेवी है. एक तो SSC IT नेवी, जिसमें सिर्फ CSC और IT बीटेक ग्रेजुएट जा सकते हैं. और अगेन आप थोड़ा जब नोटिफिकेशन देखोगे यू विल ऑल्सो गेट टू नो सम मोर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज एलिजिबल. एक और होती है SSC नेवी एंट्रीज. अब इसमें क्या होता है, इसमें हर टाइप ऑफ नेवी के एंट्रीज रहेंगे. जैसे मान लो लॉजिस्टिक्स विल बी देयर, ATCs विल बी देयर, पायलट विल बी देयर, इंजीनियरिंग, GSX, जो भी आप प्रोमिनेंट सुनते हो, जैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, नेवल आर्किटेक्चर ब्रांच, ये सब का एक अलग से पूरा एंट्री आता है. पहले यही एंट्री को यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम से अलग से थोड़ा वैकेंसीज ले लिया जाता था, या फिर INET करके एक एंट्री होती थी, इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट. तो अभी सबकी वैकेंसीज SSC नेवी के साथ मर्ज कर दी गई है. सो दोज हु आर गेटिंग इन दैट डाउट कि कॉलेज में आके नेवी आएगी, अब वो सिलसिला चले गया कोविड के बाद से. तो कॉलेज में आजकल नेवी नहीं आती, आपको खुद जाके नेवी के पोर्टल में अप्लाई करना होता है. तो ये एक हो गया.
अब अगेन सेम आपको अप्लाई करना होता है। अब इसका जो कट ऑफ आएगा ये बीटेक के परसेंटेज के बेसिस में आएगा। जो आपने बीटेक में अपने 6th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर तक करा था नेवी में, तो इसलिए कहते हैं आपको इनिशियल इंजीनियरिंग से आपको अच्छा स्कोर करना है, सो दैट कि आप वो कट ऑफ एटलीस्ट 2 ढाई साल के बाद क्लियर कर पाओ। तो ये रहेगा। एंड इवन देर इज एन एक्सक्लूसिव थिंग एट एसएससी नेवी लॉजिस्टिक्स ब्रांच एज वेल एज एजुकेशन। वहाँ पे एमएससी पीपल आर ऑल्सो एलिजिबल एज वेल एज बीकॉम वाले भी एलिजिबल हैं जिन्होंने लॉजिस्टिक्स में डिप्लोमा किया है या फिर एमबीए कर रखा है। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल स्टार वाला केस है। जनरली डायरेक्ट एंट्रीज में बीटेक या टेक्निकल वाले ही होते हैं, बट फॉर सम ब्रांचेस लॉजिस्टिक्स जो एजुकेशन में जिसमें एमएससी भी अलाउड है, ठीक है, तो एमएससी एजुकेशन, एमएससी केमिकल हो गया, बिकॉज नेवी ऑल्सो वांट्स एजुकेशन ऑफिसर्स। तो ये है नेवी के रिलेटेड। कमिंग टू द आर्मी, आर्मी में काफ़ी सारे एंट्रीज है डायरेक्ट और काफ़ी अच्छे एंट्रीज भी हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है आपका फेमस टीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट कमीशन। ये एक इकलौता आर्मी में ऐसा एंट्री है जिसमें आपको डायरेक्ट एंट्री के थ्रू परमानेंट कमीशन में मिलता है विद प्रॉपर एंटीडेट सीनियरिटी। If I recommend one entry which is highly great, highly nice, I would recommend TGC, because ये एक ऐसी एंट्री है जहाँ पे आपको मतलब अप्लाई करना होता है बेस्ड ऑन योर इंजीनियरिंग। अगेन इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है ना। काफ़ी लोग कहते हैं इसको भगवानों की एंट्री है, क्योंकि इसमें 80, 85, 86% भी जा सकते हैं इंजीनियरिंग में। तो इसलिए अगर आप बहुत मेरिटोरियस हो या बेसिकली आपने अच्छा स्कोर किया अपने कॉलेज में, तो अप्लाई फॉर इट, गेट योर एसएसबी कॉल लेटर, गो फॉर इट, परफॉर्म रियली वेल, बिकॉज इसमें जो मेरिट लिस्ट आती है इसमें वैकेंसीज कम रहती है। टीजीसी एंट्री इज वन सच एंट्री। एंड इसका सबसे अच्छा एक फायदा ये होता है कि टीजीसी एंट्री में इफ यू गेट मेरिट आउट ड्यू टू एनी रीजन, तो व्हाट हैपेंस इज यू विल डायरेक्टली गेट कॉल लेटर फॉर ओटीए, ओटीए चेन्नई या ओटीए गया। तो ये एक अपने में बहुत यूनिक एंट्री है जिसका लोग बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं कि अगर ये नहीं तो ये तो है ही हमारे पास, मतलब एनीवे यू विल जॉइन सर्विस। बाकी एंट्रीज में ये मौका नहीं मिलता। देन कमिंग टू द सेकंड डायरेक्ट एंट्री ऑफ आर्मी इज एसएससी टेक आर्मी, जिसमें आपके बेस्ड ऑन आपने जिसमें भी इंजीनियरिंग करी, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी या जो भी है मिसलिनियस करके भी उसमें कुछ कुछ ब्रांचेस रहती है, जैसे नेवल, जैसे बी आर्क रहता है, ये जो भी ब्रांचेस है आप लोग ने करी है, यू आर परफेक्टली एलिजिबल फॉर इट। उसका भी कुछ कट ऑफ आता है, अगेन यू हैव टू गिव एसएसबी, सेम प्रोसीजर। देन कमिंग टू एनसीसी स्पेशल एंट्री, ये एक इकलौती ऐसी एंट्री जिसमें एनसीसी कैंडिडेट्स फील दैट प्रिविलेज कि मैंने एनसीसी करा है तो मुझे अप्लाई करना चाहिए। और इसमें वही लोग एलिजिबल है जो सी सर्टिफिकेट विद ईदर अल्फा ग्रेडिंग या ब्रावो ग्रेडिंग आर एलिजिबल। तो जिन्होंने ए या बी करा है दे आर नॉट एलिजिबल, सी करने वाले ही एलिजिबल रहेंगे। अगर इफ दे कैन डू इट सी देन वेल एंड ग्रेट। तो ये है। और अगेन यू हैव टू अप्लाई फॉर इट। इसमें अराउंड 45-50 वैकेंसीज रहती है, मेल और फीमेल के लिए ओपन है ना। और इससे पहले मैंने जितने बताया सबके लिए मेल फीमेल ओपन है। हाँ, फॉर टीजीसी इट्स ओनली मेल, नो फीमेल एज ऑफ नाउ। तो ये है। नाउ कमिंग टू द डायरेक्ट एंट्री ऑफ जैग एंट्री इज नॉट डायरेक्ट एंट्री, अगेन जज एडवोकेट जनरल जो लॉयर वाली एंट्री है, उसमें भी यू हैव टू अगेन अप्लाई फॉर इट एंड इट डिपेंड्स। अभी रिटर्न एग्जाम शायद नहीं है, रिटर्न एग्जाम है इफ आई कैन रिकलेक्ट दैट डे, बट यू हैव टू गेट प्रॉपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से यू हैव टू गेट दैट एडवोकेट वाला टैग एंड लाइसेंस, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर इट, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग योर एसएसबी कॉल लेटर एंड उसके हिसाब से यू विल डू द थिंग। इसके अलावा एज सच देयर आर नो डायरेक्ट एंट्रीज व्हिच आई कैन रिकलेक्ट। एक आरबीसी करके होती है, बट अगेन दैट इज रेमाउंट एंड वेटनरी कोर, वो बहुत एक्सेप्शनल अलग ही चलता है, जिसमें पीपल हु हैव डन दैट वेटनरी रिलेटेड थिंग्स इन देयर लाइफ या देयर ग्रेजुएशन कोर्स, दे आर परफेक्टली एलिजिबल फॉर इट। तो ये है कुछ मोटा मोटा एंट्रीज। एंड एयरफोर्स के लिए देयर इज नो डायरेक्ट एंट्री, मतलब ओनली रिटर्न एफकेट या सीडीएस। सो ओनली नेवी एंड आर्मी हैव गॉट डायरेक्ट एंट्रीज एंड यही है। इसके अलावा देयर आर सम सर्विस एंट्रीज, जैसे एक आता है आपका एससीओ एंट्री, देन पीसीएसएल, दीज आर फॉर सर्विस पर्सनल जो बहुत सीनियर है आफ्टर देयर 9 years of service या 10 years of service. And also there is this entry called I would say HET entry for Navy. Basically after they complete the 9 years of service they can apply for it. And there is one more entry for Coast Guard. You know, we would not neglect Coast Guard here because there is an exam called Coast Guard Common Admission Test. वो भी similar to SSB होता है। Very nice entry I would say. उसमें परमानेंट कमीशन ही मिलता है, बट अगेन कुछ पे पर्क्स डिफरेंस रहते हैं, बट इट इज़ वेरी नाइस एंट्री बिकॉज नेवी में हम जब थे तब साथ साथ ट्रेनिंग होती थी एंड वेरी मच सिमिलर। सो ये सारे ऑफिसर एंट्रीज के जितने भी एंट्रीज हैं, चाहे रिटर्न हो डायरेक्ट हो, एंड आई वुड से सब कुछ मोटा मोटा यही है। फॉर मोर यू कैन डायरेक्टली सर्च ऑल द वेबसाइट्स, सारे ओपन वेबसाइट्स है नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के, सब कुछ और डिटेल में क्लैरिटी में लिखा है, बट यही है। एंड नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि जवानों या जो सेलर्स या जो एयरमैन का क्या एंट्री है। आजकल सारे एंट्रीज जवान सेलर जिसके भी सब अग्निवीर में मर्ज हो चुके हैं। अग्निवीर वायु, अग्निवीर नौसेना या अग्निवीर जो भी आपके आर्मी में है,
तो पहले इट यूज्ड टू बी लाइक SSR डबल ए फॉर नेवी, X एंड Y ग्रुप फॉर एयरफोर्स, एंड आर्मी का रेजिमेंट के हिसाब से जो भी है, क्लरिकल एंट्रीज डिपेंड्स ऑन अदर थिंग, स्पॉन्सरशिप, वो काफ़ी अलग चल रहा था। आजकल इतना नहीं है, आजकल सब कुछ का कॉमन कर दिया है। ऑल ग्रेस टू CDS बिपिन रावत सर एंड अदर ऑफिसर्स। तो मतलब दिस इज व्हाट नाउ इज फॉर जवान एंड अदर लाइक अदर रैंक्स का जो एंट्री। So I think जो अग्निवीर का पहले बहुत बाइफरकेट था, SSC, SSR, डबल ए, फिर XY है एयरफोर्स के लिए, जवानों का अलग से रैली निकलता था। इसको जो सारा मर्ज कर दिया, दैट इज आई थिंक वेरी गुड स्टेप, कि एक जगह पे ही बहुत सारी चीजें हो जाती हैं वहां से। और उसके बाद जो उनका वर्क्स है, लाइक आफ्टर 4 years दे get chance also to get the commission, right? Yes sir. So lot of things are there, and I think बहुत सारे improvements तो change is the unchanged law of nature ना, so Correct sir. keep coming and it's for good only, हमें तो अच्छा ही देखना है हमेशा। So जितने भी ऑफिसर एंट्रीज हैं उनमें एक चीज तो कॉमन है कि लाइक यू हैव टू गिव SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के प्रोसेस के थ्रू से गुजरना है आपको। यू हैव गिवन अराउंड 15 एंट्री SSBs, राइट? सो SSB अगर हम एक क्रक्स निकालते हैं, उसका जो जिस्ट निकालते हैं SSB की जो प्रोसेस है, वी नॉट गोइंग टू टॉक एवरीथिंग अबाउट SSB, लेकिन आप 3 से 4 पॉइंट्स में आप SSB का जो डिमांड है, व्हाट इट आस्क्स फॉर फ्रॉम अ कैंडिडेट, so you can just tell in a 3 to 4 points कि हाँ, अगर एक एस्पिरेंट ऐसा गारंटी दे रिकमेंडेशन कि हाँ अगर आप ऐसे हो तो हो ही जाओगे, लेकिन हाउ एन आइडियल एस्पिरेंट शुड लुक लाइक, तो लाइक पीपल कैन मेक द चेंजेस इन देयर पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू दैट। करेक्ट सर, वेरी एप्ट क्वेश्चन सर। अगर यही क्वेश्चन वैसे अगर आज से 5-6 साल पहले या आई वुड से 7 साल पहले पूछा होता तो आई वुड हैव बीन इन दैट जोन कि यार कोई मुझे यही क्वेश्चन का आंसर बता दे। और आपने जो क्वेश्चन पूछा, आई वुड से कि काफी सारे ऑडियंस कैन रिलेट एंड कैंडिडेट्स कैन रिलेट विद दिस थिंग, जो इवन कमीशन ऑफिसर्स भी हैं जो रेकमेंड भी हैं, इवन जो प्रिपेयर भी कर रहे हैं। फर्स्ट इज दिस वॉर लाइक मेंटालिटी। काफी सारे कैंडिडेट्स इस माइंडसेट में जाते हैं कि हम तो एज अ कैंडिडेट जा रहे हैं, हम एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं, हम तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं, हम तो हमसे क्या ही होगा, हमसे तो करा ही नहीं जाएगा। तो ये देयर इज नो इफ्स एंड बट्स इन फोर्सेस, है ना। जब आप सर्विस में भी रहते हो, सर को भी अच्छे से पता होगा, सैनिक स्कूल में भी सर ने देखा है, और काफी और भी जो भी सुन रहे हैं उन्हें पता होगा कि आप डाउट में जितना रहोगे उतना प्रॉब्लम है, बिकॉज देयर इज नो इफ्स एंड बट्स, इधर यू विन और यू डाई, या और यू लर्न, देयर इज नो फॉलिंग बैक। तो यही वॉर लाइक मेंटालिटी है, द फर्स्ट पॉइंट विच आई ऑलवेज इंसिस्टेड टू एवरीवन। इससे पहले भी सर से मैंने जब बात करी तो मैं बताता कि वॉर लाइक मेंटालिटी जिसमें है कि कम रिसोर्सेस कम टाइम फ्रेम में वो कैंडिडेट कितने अच्छे से कर पा रहे हैं काम, so that is what you will change your thinking in terms of पिक्चर को कैसे अप्रोच करना है, सिचुएशंस को कैसे देखना है, इंटरव्यू क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड पॉइंट ये कहना चाहूंगा, देयर इज अ मोटो फ्रॉम चेटवुड, सर फिलिप चेटवुड, that says that safety honor welfare of the country comes first always and every time, where the safety honor welfare of the men you command comes next, your own ease comfort comes last always every time। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले देश, फिर लोग, फिर खुद। इसका मतलब यही है कि आपको जब वहां जा रहे हो, ऐसा नहीं कि मेरे को पैसे कमाने इसलिए मुझे जाना है आर्मी नेवी एयरफोर्स में, वो डीप रियल रीजन हो सकता है, बट SSB को वो नहीं चाहिए। आप वही दिखा रहे हो जो उनको नहीं चाहिए, तो आप कैसे चाहोगे कि मैं तो हो जाऊंगा। तो कभी कर होना ये भी होना चाहिए कि आप फौज को जो चाहिए वो दो, है ना। मतलब बेसिकली जब हम जब कॉर्पोरेट में इंटरव्यूज देते हैं, देयर इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, कि हमें जैसा बंदा चाहिए वो तो आप दिखा पा रहे हो तो अच्छी बात है। देयर इज अ फ्रेम, अब वो फ्रेम में फिट हो पाओगे, वेल एंड गुड, इफ यू कांट देन कम बैक नेक्स्ट टाइम, है ना, विद मच मोर बेटर प्रिपरेशन। यही चीज कह के छोड़ दिया जाता है। तो चेटवुड मोटो भी इसी पे इंक्लाइंड है, विद अ वेरी नाइसली फ्रेम टेस्टिंग मेथड जो 5 दिन का डिराइव्ड है, जो मनसा बच्चा कर्मा भी है, कि आपको देश के लिए कैसे आप कर रहे हो, कि सबसे पहले दिखाओ कि कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा। फिर दूसरा, आपके जो GTO ऑब्स्टिकल्स जो भी आप करते हो उसमें देखते हो कि आप लोगों का कितना अच्छे से ध्यान रख रहे हो, लोगों को कैसे आगे बढ़ा रहे हो, तो दूसरा पॉइंट हो गया मैन। एंड लास्ट, आपका खुद का वेलफेयर, कि आपने ये नहीं सोचा कि मेरा होगा कि नहीं, टाइम पे होगा कि नहीं, या जो भी है, आपने अपना बेस्ट दे दिया, और आपने ये नहीं सोचा कि नहीं यार मुझे तो अच्छा ही करना है, तो बाकी लोग गए भाड़ में। तो ये लोग सोचते हैं कि मेरा ही रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स सोचते हैं कि मुझे ही रिकमेंड होना है, बाकी लोग तो हो जाएंगे, उनके पास बहुत अटेम्प्ट है। ऐसा नहीं, आप देखोगे कि आपने खुद भी अच्छा किया, बाकियों को भी इंप्रूव करवाया, तो ऐसे 4-5 लोग एक ही साथ हो जाते हैं रिकमेंड। फिर लोग बोलते हैं कि एक साथ कैसे रिकमेंड हो गए, और बहुत सारे बैचेस में बैच ही वॉश आउट हो जाती है। तो इन दोज केसेस, है ना, दिस चेटवुड मोटो इज हाईली एप्लीकेबल। और जो भी सर्विंग ऑफिसर्स या जो भी रिकमेंड होकर अकेडमी जाते हैं, उनको इनिशियल डेज में यही चीज सिखाया जाता है कि चेटवुड मोटो ही है सब कुछ, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्यों ना जाओ, चेटवुड मोटो ही सब कुछ है। तीसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा, जो प्रोमिनेंटली नोन एज OLQs,
हम सोचते हैं कि OLQs दिखाने पड़ते हैं, सब में OLQs रहते हैं, दैट इज वेरी नेचुरल, है ना, कि सबके पास सोशल अडेप्टेबिलिटी है, थोड़ा थोड़ा लेवल में हो सकते हैं ऊपर नीचे, किसी किसी को बस अब झलकाना नहीं आता. इट्स ऑल अबाउट 5 days परफॉर्मेंस इन SSB. इट्स नॉट लाइक कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो बट अगर आप वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जैसे काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं कि सर हम स्पोर्ट्स खेलते थे उस जमाने में बट अभी नहीं खेलते, तो इसका मतलब ये तो नहीं आपने स्पोर्ट्स को आपको कुछ याद ही नहीं है ना. तो अब वही चीज है, आपको खेलना आता है, सब कुछ आपने किया है, तो बस आपको झलकाना है कि हाँ मुझे आता है, मैंने खेला है और मैं अभी भी अगर मौका मिले तो और अच्छा खेलूंगा मैं. सो इन दैट जोन कि आपको दिखाना आना चाहिए. इन द सेम वे OLQs को दिमाग में रख के नहीं आना चाहिए कि हाँ OLQs दिखाने. यू हैव टू प्रोजेक्ट इन सच वे दैट आपके स्टोरीज के माध्यम से, आपके एक्शंस के थ्रू, आपके रेस्पॉन्सेज के थ्रू, इंटरव्यू के एक्शंस के थ्रू, या जो भी आप GD में बोल रहे हो, वो पूरा अप्रोच दिख रहा है. जैसे OLQs को 4 फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं: प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल इफेक्टिवनेस एंड डायनेमिक. तो जो 4 फैक्टर्स है, यही 4 फैक्टर्स में योर मैक्सिमम पोर्शन ऑफ योर SSB इज रिवॉल्विंग. हम सोचते हैं 15 OLQs हर स्टोरीज में कैसे दिखाएं, बट टू बी ऑनेस्ट सिर्फ 4 फैक्टर्स होते हैं इन योर रियल लाइफ. और अगर इसी को मैं छोटा सा और समराइज करूं तो 3 ही फैक्टर्स होते हैं. सबसे पहले प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सोशल क्वालिटीज और डायनेमिक. इस पूरे 3 फैक्टर्स में पूरी SSB समराइज हो जाती है. आपको यही 3 का परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगाना अलग अलग जगह पे. कहीं पे ज्यादा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, कहीं पे ज्यादा सोशल क्वालिटी दिखा रहे हो, कहीं पे डायनेमिक दिखा रहे हो. डायनेमिक का मतलब है भाग दौड़, मेहनत, काम करवा रहे हो, बहुत टाइम की कमी दिखा के जल्दी जल्दी अर्जेंसी में काम कर रहे हो. तो ये है. लास्टली चौथा पॉइंट जो है ना, 3 से 4 पॉइंट में समराइज करना, चौथा पॉइंट इज माइंडसेट ऑफ क्लैरिटी. इसका मतलब ये है कि आपको घबराना नहीं है कि हाँ यार बाकी बंदा इतना अच्छा तैयारी करके आया, बाकी बंदे की इतनी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, इसके पापा तो ब्रिगेडियर है, कर्नल है, पता नहीं क्या क्या लोग सोच के आते हैं. तो अलग ही वो खौफ का माहौल हो जाता है और फिर लोग जो प्रिपेयर होके भी आते हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. तो इसलिए हम बोलते हैं उसको 3 C's में हम करते हैं: बीइंग कूल, काम, कंपोज्ड. ठीक है, वहां पे इट डजंट मैटर आप किस जगह से आ रहे हो, क्या कर रखा है आपने, क्या प्रीवियसली कर रखे हो. जैसे काफी लोग सोचते हैं जब प्रीवियसली रिकमेंडेड SSB में जाते हैं या एकेडमी वाले जाते हैं तो उनके से अलग बेनिफिट होता है. आई वुड से ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं होता, उन पे ज्यादा चैलेंजिंग आ जाता है कि उनको और कैसे हैंडल करना है. तो ये सब मिथ्स हैं. ठीक है, तो जो वही मैं कहूंगा लास्ट पॉइंट ये है कि मिथ्स को क्लियर करके जाओ और जितना हो सके उतना मिथ्स क्लियर करो, आपका जर्नी और स्मूथ बन जाएगा. रेस्ट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एनफ. एंड ये 3 C's में एक और पोर्शन आ जाएगा: कूल, काम, कंपोज एंड कॉन्फिडेंट. सो दीज 4 पॉइंट्स आर देयर फॉर द होल SSB. वेरी आई एग्री टू योर पॉइंट्स. एंड जितना भी बताया कि उसका जो क्रक्स यही है कि यू हैव टू बी रियल यू. एंड जो अपना लाइफ है, जैसा बताया आपने कि these qualities are already inside us. So it all depends कि हाँ किस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. So जितनी भी चीजें हैं, so if you go to SSB, don't waste the attempts and you have to go fully prepared. बहुत you have to remember कि जो अगर पहला मौका मिला हुआ है, you don't have to waste that मौका. So कभी भी जो अपॉर्चुनिटीज होती है, you never know कि जो पहली अपॉर्चुनिटी है वही बेस्ट हो सकती थी, but you wasted that, right? So लाइफ में भी not only in SSB, कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, you have to grab that opportunity with full confidence. Be honest, be real you and full confidence से. Doesn't matter यार, जैसा आपने बताया कि no matter from where you are coming. I also come from a very small village, right? अगर मैं अपनी upbringing की बात करूँ, so I was in 5th तक तो मेरे को English, I did not know a single word of English, right? But after that the life changed. मैं तो ये सोच के नहीं गया ना सैनिक स्कूल में कि यार मैं तो गांव का हूँ, मैं कैसे सीखूंगा, मुझे कौन बताएगा. तो इट वाज देयर इनसाइड कि हाँ वो एक आग कर रही थी, नहीं मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है. देयर ऑन द जर्नी स्टार्टेड, आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट्स, एलोक्यूशंस एंड जो भी ग्रुप डिस्कशंस हैं. एंड बहुत सारे ऑफिसर्स का भी सपोर्ट रहता है. इफ यू आर रिमेंबर वन थिंग, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, राइट? सो अगर आप ईगर हो सीखने के लिए तो आपके आसपास वैसा इन्वायरमेंट बन जाएगा, है ना? सो इट ऑल अबाउट द जितना भी चीजें हैं. सो अगर आप SSB में जा रहे हैं, सो यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट रहना है हमेशा थ्रू आउट योर लाइफ, नो मैटर द सिचुएशन. वी हैव टू रिमेंबर कि दिस टाइम दिस टू शैल पास, राइट? सो इन केस लाइफ में किसी के अगर बैड फेज चल रहा है, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, है ना? अगर बुरा आया है तो अच्छा भी आएगा, सूर्यास्त हुआ है तो सूर्योदय भी होगा, राइट? There is always a sunrise after the sunset, है ना? So it was really nice discussing with you about your life, entries in the armed forces, and also about your journey of the cult SSB. So Pallav, in the end, would you like to give any message to the youth, inspiring message? And because I know your life has been really inspiring, it really inspired me a lot. क्योंकि जैसा
एक जो माइंडसेट है ना, जो ग्रोथ माइंडसेट की हम बात करते हैं, तो इट्स देयर इन यू। ठीक है, सो अपनी लाइफ से आप कुछ मैसेज देना चाहोगे जितने भी हमारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, या फिर बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको कुछ मोटिवेशन? यस सर, आई वुड से कि लाइफ विल ऑलवेज पुश यू डाउन, है ना, नो मैटर व्हाट। सर ने भी अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे, मैंने भी देखे, एंड काफी सारे ऑडियंस भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि उन्हें लगता है कि हाँ यार ये हमारे साथ ही क्यों, है ना, बोलते हैं व्हाई मी, बट ट्राई मी वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, तो दैट इज वेयर द रियल गेम्स कम्स इन पिक्चर। बिकॉज आई कैन स्टिल रिमेंबर देयर आर मेनी पीपल आउट हियर दोज हैव गॉट सेटबैक्स इन देयर लाइफ, चाहे वो अपने एकेडमिक को लेकर हो या कभी कभार अपने करियर को लेकर हो एंड व्हाट नॉट। बट ओनली थिंग विच आई केप्ट ऑन सेइंग माई सेल्फ, यार नेवर गिव अप, है ना, दिस शैल टू पास, जैसे सर ने भी कहा। और यही जो नेवर गिव अप है ना, ये इट्स इजियर, है ना, इट्स इजियर देन डन। मतलब काफी इसमें पुट इन लगता है आपको, यू हैव टू ईच डे कन्विंस योर सेल्फ कि नो, you have to put yourself best, and till date again lot of things, ups and downs happened, and lot of things are also at a greener side, काफी अच्छे अच्छे चीजें हुई है। और यही है कि नेवर गिव अप। एंड सेकेंडली देखो, देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग एट योर डोर्स, यू नेवर नो विच वन टू स्ट्राइक एंड विच वन टू टेक, तो टेक एवरीथिंग, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है ये लूँ या ये लूँ ये लूँ, तो कभी कभी क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मिल रहा है ले लो पहले, एंड दैट इज विल क्रिएट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्योंकि उसके बाद यू विल फाइंड कि सब कुछ एक साथ ही अलाइन हो जा रहा है ना। अगर उस दिन मैं नहीं सोचता कि हाँ मुझे कल स्टार्ट करना है या जो भी है ना, मुझे आगे भी और भी बहुत सारी चीजें करनी है, मतलब मल्टीपल थिंग्स, इवन जॉइनिंग अकेडमीज एंड लीविंग ऑल दोस थिंग्स, तो I would have never land up helping out people and more importantly guiding candidates out through this lovely channel, तो ये सब नहीं हो पाता। और यही है, छोटे छोटे चीज will always put you in the right picture। And lastly, be gratitude have gratitude towards all the people who are associated with you, show them respect, क्योंकि if you are a good people, good person, सब कुछ साथ में आएगा, बोलते हैं ना all stars aligned। वो कब होगा, जब आपके पास, है ना, मतलब सबकॉन्शियसली सबके आशीर्वाद हैं, ब्लेसिंग्स हैं, एंड यू विल मेक इट, है ना, नॉट ओनली इन योर लाइफ बट वॉट एवर यू आर डूइंग। क्योंकि हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो रेकमेंड नहीं हो पाए, बट वन इज इन सिविल सर्विसेज, IRS ऑफिसर है, वन इज डूइंग रियली ग्रेट, ही इज एन बिग एंटरप्रेन्योर वर्किंग इन करोड्स ऑफ फर्म्स। तो मतलब ऑल दिस थिंग विल हैपन, जस्ट दैट आप अच्छे से तैयारी करो। लास्टली एक चीज कहूंगा, इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट फॉर डिफेंस या सिविल सर्विसेज या वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, कैट या जो भी चीज की हो, इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट यू विल डेफिनेटली डू ग्रेट, चाहे आप वो करो या ना करो, है ना। देयर आर मेनी पीपल हु कांट डू ग्रेट इन देयर सर्विस, बट, है ना, आफ्टर दे रियली डू वंडरफुल। तो ऐसे काफी सारे मेरे खुद के कोर्समेट्स हैं, दे आर प्लानिंग टू लीव। तो इट्स नॉट लाइक कि अंदर ही जाके सब कुछ अच्छा है, वॉट एवर प्लेस यू आर, जस्ट हसल एंड मेक इट हैपन। सो ये मूल मंत्र रहेगा। एंड थैंक यू सर। So it was really nice discussing with you. So बहुत मजा आया, and I hope कि जितने भी लोग देखेंगे they'll also get inspired. See, इंस्पिरेशन जो होती है आप आसपास के लोगों को ही देख के लेते हो, अगर वो हमारे साथ का ही कोई हो, हमारे नोन ही हो, तो उसमें तो और अलग ही मजा है, राइट। एलन मस्क और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को देख के तो सब इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आसपास के लोगों को देख के कुछ उनसे सीखो ना, उनकी क्वालिटीज देखो, तो उसमें एक अलग ही मजा आता है, राइट। सो your next 5 years of hard work will decide the next 50 years of your life, है ना, it's rightly said. So better late than never. तो अभी टाइम है, everyone has to work very very hard for their life, ताकि बाद में जाके regret ना हो, है ना, because the heaviest thing to carry is the regret of your life. वो बोलते हैं ना, काश मैंने कर लिया होता उस टाइम, काश मुझे कोई बता दिया होता। So आज in today's world we are at a position कि जहाँ पर वर्ल्ड का जो रिचेस्ट मैन है एलन मस्क, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पर है, आप भी इसी प्लेटफॉर्म पर हो, राइट। सो यू आल्सो हैव गॉट द सेम अपॉर्चुनिटी, सेम रिसोर्सेज टू डू वंडर्स इन योर लाइफ। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, and all the very best to the team Cult SSB also for their future endeavors, and I hope more and more good human beings come out from your association and your organization, not only in the armed forces but also jahan par bhi wo log jaye, they excel in their life. And once again, thank you so much Pallav for joining. Thank you so much, sir, for sharing this platform. And definitely, if even a single candidate gets benefit from this, you know, our motto and our single objective of that corridor wala story जो मैंने बताया will be fulfilling here. Thank you so much.